دنیا پور عدالت نے نافرمانی پر گھر سے نکالنے کی رنجش پر اپنے حقیقی باپ کو کلہاڑیوں کے وار سے قتل کرنے والے بدبخت بیٹے کو سزائے موت اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا کا حکم سنا دیا۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج دنیا پور سید محبوب احسن نے تھانہ جلا آرائیں کے مشہور قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ سنگین مقدمات میں ملوث ملزمان کو قرار واقعی سزا دلوانے کے لیے تمام قانونی تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ برطانوی وفد نے ایم پی اے ماہر کاشف پٹھیار کی زیر نگرانی ڈی ایچ کیو ہسپتال ننکانہ صاحب کا ایک اہم فالو اپ دورہ کیا۔ وفد میں ڈیپٹی کمشنر تسلیم اختر راؤ، سی ای او ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر روہیل اختر اور میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر اطہر فرید بھی شامل تھے۔ دورے کا مقصد صحت کی دیکھ بھال کے اہم اقدامات کو حتمی شکل دی جا سکے۔ سیشن کے دوران وفد نے 16 خصوصی بائیو میڈیکل مشینوں کی فراہمی 2 ماہ کی ٹائم لائن میں فراہم کی جانے کی یقین دہانی کرائی۔ سرگودھا سے اپڈیٹ شامل کرتے چلیں۔ شہید سب انسپکٹر محمد شیر کی برسی کے موقع پر پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی اور درجات کی بلندی کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔ شہید سب انسپکٹر 15 جنوری 2001 کو لاہور روڈ علاقہ تھانہ بھاگٹاں والا دوران گشت نامعلوم ملزمان کی فائرنگ سے شہید ہوئے تھے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے احکامات کی روشنی میں شہدائے پولیس کی فیملیز کی فلاح و بہبود ہمارا عزم ہے۔ دوسری جانب شیخوپورہ میں سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ میں اضافے سے کاروباری زندگی ٹھپ ہو کر رہ گئے۔ سردی کی شدت کی وجہ سے عوام الناس کی آمد و رفت پہلے ہی کم تھی، لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے گاہکوں میں مزید کمی آ گئی۔ اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں نمائندے شیخ محمد ریحان سے۔ جی شیخ، آگاہ کیجیے گا۔ سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ساتھ غیر لائنر لوڈ شیڈنگ میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ ہمارے ساتھ شہری اور تاجر طبقہ موجود ہے، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے۔ جی بھائی بتائیے گا کہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے آپ کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ جی کافی ابھی دن جا رہے ہیں، سردی کی شدت میں بھی کافی اضافہ دیکھنے کو آ رہا ہے، اور ساتھ ہی یہ جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہوا ہے اس سے کاروبار بہت متاثر ہو رہا ہے۔ یہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے، اس کی وجہ سے کاروبار ٹھپ ہو کے رہ گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک تاجر بھی موجود ہے، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے اس بارے میں۔ بھائی بتائیے گا کہ آپ کا کیا کہنا ہے غیر لائنر لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے؟ جی السلام علیکم۔ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں گورنمنٹ نے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے کہ جو تاجر برادری ہے ان کے لیے کچھ آسانیاں پیدا کی جائیں۔ دن بہ دن لوڈ شیڈنگ اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ دیکھیں کاروباری حالات بالکل مفلوج ہو کے رہ گئے۔ 4 5 گھنٹے لگاتار لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، جو گرمی کے آنے تک پتہ نہیں کیا حالات ہوں گے۔ ابھی تو سردیاں ہیں تو یہ حالات چل رہے ہیں، تو جب گرمی آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ گورنمنٹ کو چاہیے، وزیر اعظم پاکستان کو چاہیے کہ کم از کم لوڈ شیڈنگ کا کوئی شیڈول تو ہونا چاہیے نا۔ بنا شیڈول کے یہ لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں، کاروبار بالکل مفلوج ہو کے رہ گئے، کوئی کسٹمر نہیں آتا، تو ہم پریشان ہیں۔ تو یہ وزیر اعظم سے اپیل ہے کہ خدارا آپ یہ لوڈ شیڈنگ کا جو ہے کوئی شیڈول بنائیں، شیڈول تیار کیا جائے کہ تاکہ کاروباری حضرات اپنے معاملات زندگی کو اچھے طرح سے چلا سکیں۔ جی جیسا کہ آپ نے شہری اور تاجر کی بات سنی، ان کا وزیر اعظم سے التماس ہے کہ غیر لائنر لوڈ شیڈنگ کو فوری نوٹس میں لیا جائے۔ خبر ہے کہ کبیر والا سترا پنجاب کے ورکرز کو 2 ماہ سے تنخواہیں جاری نہ ہو سکیں، ورکرز کے گھروں میں فاقے، ورکرز سراپا احتجاج ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف سے فوری تنخواہیں جاری کرنے کا مطالبہ۔ ایک طرف حکومت پنجاب کو صاف بنانے کے لیے بلند و بالا دعوے کرتے نظر آ رہی ہے، لیکن دوسری طرف تحصیل کبیر والا کے سترا پنجاب کے ورکرز 2 ماہ کی تنخواہوں سے محروم ہیں۔ ورکرز کے گھروں میں فاقے کی نوبت آن پہنچی ہے۔ شکارپور سے اپڈیٹ شامل کرتے چلیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سابق صوبائی وزیر اور رکن سندھ اسمبلی امتیاز احمد شیخ نے کہا ہے کہ شکارپور کے بنیادی ڈھانچے اور سماجی سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے مشترکہ کوششیں ناگزیر ہیں۔ انہوں نے یہ بات ڈیپٹی کمشنر شکارپور شکیل احمد ابڑو سے ملاقات کے دوران کہی، جس میں شہر کی ترقی اور عوامی فلاح و بہبود سے متعلق مختلف منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔
कसूर से अपडेट शामिल करते चलें। शहरी इलाकों में गैर कानूनी मवेशी हुकूमती पाबंदियों के बावजूद गलियां अस्तबल बन गईं। कसूर के इलाका बस्ती रहमानपुरा, बस्ती शदरा और मंगल मंडी में मेन रास्ते पर गैर कानूनी तौर पर मौजूद गाय और भैंसें किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। कसूर से अपडेट कर रहे हैं माहर अतीक। कसूर के गुंजान आबाद इलाकों बस्ती रहमानपुरा, बस्ती शदरा और मंगल मंडी के मेन रास्ते पर मवाशियों की भरमार ने इलाका मुकीनों की जिंदगी अजीरन बना दी है। मवाशियों का गोबर नालियों और गलियों में जमा होकर शदीद ताफुन, गंदगी और माहौलियाती आलूदगी का बास बन रहा है। जगह जगह गोबर के ढेर, बदबू, मच्छरों की अफजाइश और खतरनाक बीमारियों के फैलाव की वाज़ेह अलामत बन चुके हैं। अहले इलाका के मुताबिक स्कूल जाने वाले बच्चों, बुजुर्ग, शहरियों और खवातीन को रोजमर्रा आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत रहायशी इलाकों में मवाशी रखना, सड़कों या गलियों में बांधना या आज़ाद छोड़ना काबिल सजा जुर्म है, मगर कसूर शहर में पीरा फोर्स और म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से कानून पर अमल दरामद सवालिया निशान बना हुआ है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर कसूर आसिफ रजा से मुतालबा किया है कि फौरी नोटिस लिया जाए, गैर कानूनी मवाशियों को रहायशी इलाकों से बाहर मुंतकिल किया जाए। कैमरामैन के साथ महर अतीक, नुमाइंदा 1 पॉइंट न्यूज कसूर। डेप्यूटी कमिश्नर कसूर आसिफ रजा की हिदायत पर जिला भर में तजावुजात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी नश्तर रहमान लोधी और SDEO पैरा फोर्स गजनफर नवीद की जेर निगरानी फूल नगर में मुस्तकिल तजावुजात का खात्मा किया गया। कसूर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी नश्तर रहमान लोधी और SDEO पैरा फोर्स गजनफर नवीद की जेर निगरानी CEO म्यूनिसिपल कमेटी फूल नगर राशिद, MOR हीरा और दीगर अफसरान के हमरा थे। पाकपतन से अपडेट शामिल करते चले। रेलवे स्पोर्ट्स ग्राउंड ठेके पर देने के खिलाफ दर्जनों अहले इलाका और खिलाड़ियों का एहतजाज। ठेका मंसूख करने और रेलवे ग्राउंड खेलों के लिए अतिया करने का मुतालबा। आपको बता रहे हैं कि अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए बताया कि अरसा 40 साल से रेलवे ग्राउंड पर इलाका के नौनिहाल फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल खेल रहे हैं। नौजवान खिलाड़ी पंजाब और पाकिस्तान के मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा ले चुके हैं। DS रेलवे ने रेलवे स्पोर्ट्स ग्राउंड को ठेके पर दे दिया। बच्चों और नौजवान नस्ल के पास खेलने के लिए कोई ग्राउंड नहीं। बच्चे और नौजवान बेरोजगारी और गलत सोसाइटी का शिकार होते सकते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान वफाकी वज़ीर रेलवे ग्राउंड खेलों के लिए अतिया कर दें। उधर सरगोधा में 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग के तबादले में SHO थाना लक्सियां फायर लगने से शहीद हो गए। 2 पार्टियों के दरमियान झगड़ा चल रहा था। दोनों नस्वाना फैमिली के लोग थे। एक ग्रुप तसव्वुर नस्वाना जबकि दूसरा नामालूम ग्रुप फायरिंग कर रहे थे। इतला मिलने पर SHO थाना लक्सियां आमिर रिजवान खान मौका पर पहुंचे तो नशे में धुत ग्रुप ने सीधी फायरिंग पुलिस पार्टी पर कर दी, जिससे फायर सीधा SHO के सीने में आ लगा और जख्मियों की ताब ना लाते हुए आमिर रिजवान शहीद हो गए। DPO सरगोधा और पुलिस की भारी नफरे मौका पर मौजूद है। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। खबर है कि तहसील आरिफ वाला इंतजामिया और महकमा फूड अथॉरिटी इन एक्शन। आरिफ वाला के गिरदोनवा में मिलावट माफिया के खिलाफ बड़े ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। दूध में मिलावट और डेयरी मसनूआत में मिलावट के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाइयाँ जारी हैं। मिलावट करने वालों के खिलाफ फूड सेफ्टी टीमों की मुसलसल कार्रवाइयाँ जारी हैं। खबर है कि ओबाड़ो में कचरे के इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले डाकुओं ने हथियार डालने पर आमादगी जाहिर कर दी। शरगैंग के इश्तिहारी मुल्ज़िमान ने खुद को पुलिस के हवाले करने पर रजामंदी जाहिर कर दी है, जबकि हुकूमत और डाकुओं के दरमियान तहरीरी शराइत भी तय पा गई हैं। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक हुकूमत की जानिब से हथियार डालने वाले डाकुओं के मुकदमात में रियायत देने पर इत्तफाक किया गया है। दूसरी जानिब शिकारपुर के इलाके गांव सरदार हाजी खान कल्होड़ो के मुअज़्ज़िज़ शख्स अब्दुल वाहिद खान कल्होड़ो इंतकाल कर गए। शिकारपुर में रिपोर्टर आशिक अली कल्होड़ो के मुताबिक इंतहाई दुख और अफसोस के साथ इतला दी जाती है कि गांव सरदार हाजी खान कल्होड़ो से ताल्लुक़ रखने वाले एक अमीर घराने के मुअज़्ज़िज़ और नेक नाम शख्स अब्दुल वाहिद खान कल्होड़ो को चरसे से बीमारी के बायस सक्खर रेंजर्स अस्पताल में ज़ेर इलाज थे, जो रज़ा इलाही से इस फ़ानी दुनिया से रुखसत कर गए।
खबर है कि हासिलपुर में दो गुरुहों के दरमियान झगड़ा उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब दोनों जानिब से डंडों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। झगड़े के दौरान एक शख्स शदीद जख्मी हो गया जिसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक वाक़े में मुलव्विस कुछ अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। वाक़े के बाद गिरफ्तार अफराद की रिहाई के मुतालबे पर डंडा बरदार ख़वातीन की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। मुजाहिरीन ने बहावलपुर रोड ब्लॉक करके शदीद एहतजाज किया और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पुलिस ने उनके अफराद को नाहक गिरफ्तार किया है। मुजाहिरीन का मजीद कहना है कि गिरफ्तार अफराद को रिहा ना किया गया तो एहतजाज जारी रखा जाएगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर शेखपुरा और दीगर महकमा सेहत के अफसरान की अदम तवज्जो और लापरवाही अताइयों के ज़िला भर में भरमार। भक्की रोड की आबादी आराइयाँ वाला में अताई के गलत इलाज मुआवजा से दो कमसन बहन भाई जाँ बहक। एक की हालत इंतहाई तशवीशनाक। SHO डिवीजन महबूब भट्टी ने अताई डॉक्टर को गिरफ्तार करके बच्चों के बाप जावेद नज़ीर की तहरीरी दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद महकमा सेहत ने अताई की दुकान भी सील कर दी है। मुतासरा खानदान की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ से इंसाफ की दुहाई। सरगोधा में कब्जा माफिया मुतहर्रिक RT सेक्रेटरी की पुश्त पनाही में गैर कानूनी D क्लास अलशहबाज टर्मिनल तरीके से बस स्टैंड बना दिया गया जो लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ है, लेकिन RT सेक्रेटरी के खिलाफ ताहाल कोई महकमाना कार्रवाई नहीं हुई। मजीद तफसीलात जानते हैं माहर साजिद शाकिर से। जी साजिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि शेख मोहम्मद इकबाल ट्रांसपोर्ट कंपनी ने D क्लास बस स्टैंड जो कि जनरल बस स्टैंड सरगोधा के बिल मुकाबल चला रहे हैं और RTA ने अपनी फॉर्मल मीटिंग बुलाए बगैर कानूनी तकाज़ों को नज़रअंदाज करते हुए अलशबाज ट्रांसपोर्ट कंपनी का लाइसेंस 2 साल के लिए रेन्यू कर दिया। RTA ने अलशबाज ट्रांसपोर्ट कंपनी को D क्लास बस स्टैंड का लाइसेंस गैर कानूनी तमाम बेज़ाब्तियों और असूलों को नज़रअंदाज करते हुए जारी किया। ट्रांसपोर्ट रूल्स के मुताबिक एक D क्लास बस स्टैंड के लिए कम अज़ कम 80 मरले 4 कनाल अराजी दरकार है, जबकि अलशबाज ट्रांसपोर्ट के पास सिर्फ 54 मरले ज़मीन है, जो सरासर मोटर व्हीकल रूल्स 1969 के रूल AB 257 की खिलाफ वर्जी है। सरगोधा की इंतज़ामिया इस हद तक गिर चुकी है कि सरकारी गलियों को भी इन्होंने ठेके पर दे रखा है, जैसा कि सरगोधा लारी अड्डा अलशबाज टर्मिनल जो कि एक गैर कानूनी बस स्टैंड बना हुआ है और इंतज़ामिया की मिली भुगत से W ब्लॉक गली नंबर 7 को अलशबाज ने मुकम्मल तौर पर बंद करके अपने टर्मिनल के अंदर शामिल कर रखा है, जो कि इंतज़ामिया के मुंह पर एक तमाचा है। इसमें सरगोधा RT सेक्रेटरी ऑर्डिनेंस एक्ट और दूसरी इंतज़ामिया की मिली भुगत मुकम्मल तौर पर शामिल है। इस बस स्टैंड को कोई पूछने वाला नहीं। RT सेक्रेटरी और अड्डा इंस्पेक्टर की मिली भुगत से इन्होंने W ब्लॉक की गली नंबर 1 को मुकम्मल तौर पर बंद कर रखी है। अलशबाज टर्मिनल मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है, जिसमें इंतज़ामिया की मिली भुगत शामिल है। मेरी सरगोधा की आवाम से मुतमाना अपील है कि मेरी इस उधर मुस्तफाबाद कसूर में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। लोड शेडिंग के बायस सर्दी के मौसम में घरेलू और कारोबारी सार्फिन मुश्किलात और परेशानी का शिकार हैं। तफसीलात जानते हैं हमीद कसूरी से। जी हमीद, आगाह कीजिएगा। वक्त मैं मौजूद हूँ कसूर के इलाका मुस्तफाबाद में, जहाँ सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही गैर एलानिया लोड शेडिंग में इजाफा होता नज़र आ रहा है, जिससे घरेलू सार्फिन और दुकानदार हज़रात शदीद मुश्किलात में हैं। इस हवाले से मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से बाज़ार के मामला बहुत मुतासर हैं और उसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। लिहाजा अपील है गवर्नमेंट से कि इससे गुरेज किया जाए और लोड शेडिंग है जो कम की जाए। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से हमारे कारोबार बिल्कुल ठप होकर रह गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ से अपील है कि इस मामले को जो गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है इस पर कंट्रोल किया जाए।